ضرب عضب کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ کہانی ان چہروں کی ہے جو معصوم دکھتے ہیں مگر اندر سے خون آلود ہوتے ہیں۔ راولپنڈی کے خفیہ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ کرنل ہاشم کی میز پر اب وہ فائل کھلی تھی جس کے ہر صفحے پر وقت کی سچائیاں اور خاموش جنگ کی نشانیاں تھیں۔ سر، ہمیں نئی رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ کیپٹن علی نے ہاتھ میں تھامے ایک USB کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کراچی کے ایک سابق نیوی افسر نے خفیہ طور پر یہ مواد بھیجا ہے۔ کرنل ہاشم نے بھنویں سکوڑ کر کہا، کیا یہ مستند ہے؟ بالکل، اس میں را کے نیٹ ورک کی ہارڈ میپنگ ہے۔ کراچی کی لیاری، کورنگی، گلشن حدید تک ان کے روابط کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ اور سب سے اہم بات، خبر اور سہتوات حسین مبارک پٹیل عرف کی لوکیشنز کی ٹائم لائن موجود ہے۔ روحزاد نے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، یہ بندہ ایران کے بندر عباس، زاہدان اور چابہار میں کئی مرتبہ انڈین قونصلیٹ سے رابطے میں رہا۔ ایران کے ذریعے اس کی نقل و حرکت کو مسلسل کوڑ دیا جاتا رہا۔ کرنل ہاشم نے سنجیدگی سے کہا، یعنی ہم صرف ایک شخص کی گرفتاری کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک ریاستی پروجیکٹ کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ کیپٹن علی نے سر ہلایا، سر، ہمیں عالمی دباؤ کا سامنا ہوگا، مگر اگر ہم اس کے موبائل سے تمام میسیجز، تصاویر اور وہ ایران انڈیا پاکستان نیٹ ورک کی تھریڈز حاصل کر لیں تو ہمارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچے گی۔ روزاد نے ایک نئی رپورٹ کھولی، سر، آج شام گوادر کے قریب ایک نیوی سروس بوٹ پر ایک مشتبہ شخص دیکھا گیا۔ وہ وہی جوتے پہنے ہوئے تھا جو پچھلی CCTV فوٹیج میں نظر آئے تھے۔ کیا رابطہ ہوا؟ کرنل نے تیزی سے پوچھا۔ جی ہاں، مقامی مچھیر اکرم نے خفیہ فون پر اطلاع دی۔ کرنل نے فائل بند کی، ٹھیک ہے، ہم موقع پر ایک ٹیم بھیجتے ہیں، مگر یاد رکھو کوئی جلد بازی نہیں۔ اسی لمحے راولپنڈی میں موجود ایک خفیہ ساؤنڈ روم میں ایک اور افسر، میجر انور، انٹرسپٹڈ کال سن رہا تھا۔ ایک آواز سنائی دی، مقبول بھائی، بندہ سیف ہے، چبہار واپس بھیجنا ہے، کیا یا کراچی کا کام کمپلیٹ کروائیں۔ میجر انور نے فوراً کال ریکارڈ کی اور کرنل کو رپورٹ دی، سر، یہ کوڈ ورڈ مقبول انہی رابطوں کے نیٹ ورک سے متعلق ہے جو کراچی میں بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کی منصوبہ بندی میں استعمال ہوتے تھے۔ کرنل ہاشم نے نظریں نیچے کیں، پھر آہستہ سے کہا، بس اب وقت آ گیا ہے۔ اسی رات گوادر کے نزدیک ایک چھوٹے ساحلی گاؤں میں روحزاد اور علی عام کپڑوں میں مکمل خفیہ انداز میں پہنچے۔ وہ جھونپڑی جس کے بارے میں شبہ تھا باہر سے بند تھی۔ مچھیر اکرم نے اشارہ کیا، یہیں چھپا ہے۔ رات کو کشتی سے آیا تھا، 2 لوگ ساتھ تھے۔ چہرہ ڈھانپا ہوا تھا مگر انداز وہی تھا۔ علی نے پسٹل نکالا اور اشارہ کیا، ہوا میں شور نہ ہو۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، اندر ایک شخص اپنے بیگ میں کچھ بھر رہا تھا، جعلی پاسپورٹ، ڈالرز اور ایک سیٹلائٹ فون۔ روحزاد نے آگے بڑھ کر گرجدار آواز میں کہا، ہاتھ اوپر، تمہاری سازش اب ختم ہو چکی ہے۔ وہ شخص چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے سر اٹھایا۔ وہی آنکھیں، وہی چہرہ۔ وہ مسکرایا جیسے برسوں کی محنت کے بعد پہلی بار پکڑا گیا ہو۔ تو تم لوگ تھے؟ علی نے ہتھکڑی نکالی، نہیں، ہم وہ ہیں جو اپنے وطن سے غداری برداشت نہیں کرتے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف ہتھکڑی کی آواز گونجی، چھک۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک اور باب تحریر ہونے والا تھا۔ راولپنڈی کے فوجی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر میں خاموشی اور تجسس کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ دفتر میں موجود ہر افسر کی نگاہیں ایک ہی شخص پر جمی تھیں۔ کل بھوشن یادو، جسے محض پٹیل کے نام سے جانا جاتا تھا، اب پاکستانی حکام کی تحویل میں تھا۔ کرنل ہاشم نے ایک گہری سانس لی، تمہاری زندگی اب ویسی نہیں رہے گی، یا جو بھی تمہارا اصلی نام ہے۔ کل بھوشن نے مسکرا کر کہا،
میرا نام وہی ہے جو تم نے پکڑا ہے، مگر میری کہانی کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ میجر انور نے سامنے رکھے فائل کو کھولا۔ ہمیں تم سے تمہاری کہانی نہیں، تمہارے مشن کی تفصیلات چاہیے۔ یہ کل بھوشن نے نظریں میجر انور کی طرف جمائیں۔ میں بھارتی نیوی کا ریٹائرڈ آفیسر ہوں، مگر جو مشن میں نے شروع کیا وہ صرف میرا نہیں تھا، وہ ایک پالیسی تھی، ایک ایجنڈا تھا، سی پلان۔ کرنل ہاشم چوک پڑے۔ سی پلان؟ کور ڈسٹیبلائزیشن پلان۔ کل بھوشن نے آہستہ سے کہا، کراچی، بلوچستان، حتیٰ کہ کشمیر، ہر جگہ آگ لگانے کا منصوبہ، اور ہم نے ایران کو بطور کوڈ استعمال کیا۔ روزاد نے آگے جھک کر کہا، تو تم مانتے ہو کہ ایران سے تم نے کئی بار پاکستان میں انٹری لی؟ جی، چابہار اور زاہدان میں میرے لیے انڈین کانسولیٹ نے سہولت فراہم کی۔ میرے پاس 3 پاسپورٹس تھے اور پاکستان میں مختلف ناموں سے بزنس رجسٹرڈ کر رکھے تھے، سب جعلی، مگر سب کچھ سسٹم کے تحت۔ کرنل ہاشم نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، یہ سب عدالت میں بولا جائے گا، مگر ہمیں مزید ثبوت چاہیے۔ تم نے اپنے نیٹ ورک میں کن کن لوگوں کو شامل کیا؟ کل بھوشن نے دھیرے سے کہا، تم لوگ سب تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ کئی لوگ تمہارے اداروں کے اندر ہیں جو کبھی سرحد پار گئے ہی نہیں، مگر دشمن کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ سن کر دفتر میں موجود سب کو ایک جھٹکا سا لگا۔ علی نے فوراً کمپیوٹر اسکرین پر CCTV فوٹیج کی ایک نئی سیریز چلائی۔ یہ ویڈیوز لیاری، کورنگی اور ہب سے ملی ہیں۔ ان میں تمہارے رابطے واضح ہیں، اور ان ویڈیوز میں جو لوگ تم سے ملتے ہیں ان کی شناخت ہماری ٹیم کر چکی ہے۔ کل بھوشن نے ایک لمبی آہ بھری، تو تم واقعی قریب آ چکے ہو، مگر یاد رکھو، تم صرف مجھے نہیں پکڑ رہے، تم ایک بیانیہ، ایک نیٹ ورک، ایک سیاسی جنگ کو بے نقاب کر رہے ہو۔ دنیا کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی۔ کرنل ہاشم نے سرد لہجے میں کہا، ہمیں دنیا سے سچ چھپانے کا شوق نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ اب تمہارا کھیل ختم ہوا۔ اسی وقت ایک نیا افسر کیپٹن نعمان اندر داخل ہوا۔ سر، ہمیں ایک انفارمیشن ملی ہے، جمشید ٹاؤن میں را سے وابستہ ایک اور ایجنٹ فہیم شامی روپوش ہو گیا ہے۔ وہ کل بھوشن کے رابطے میں تھا اور کراچی میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں ملوث ہے۔ کرنل ہاشم نے حکم دیا، ٹیم 4 کو فہیم شامی کی گرفتاری کے لیے بھیج دو۔ کوئی غلطی نہ ہو۔ علی نے روزاد کی طرف دیکھا، تو اگلا ہدف واضح ہے، مگر ہمیں تیز کام کرنا ہوگا۔ روزاد نے سر ہلایا، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی کئی چہرے بے نقاب ہونے باقی ہیں۔ کل بھوشن نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اور کچھ چہرے ہمیشہ نقاب میں ہی رہتے ہیں، لیکن اس بار کرنل ہاشم نے سخت لہجے میں جواب دیا، مگر ہم ہر نقاب کے پیچھے چہرہ پہچاننا سیکھ چکے ہیں، تم جیسے غداروں سے۔ دفتر میں خاموشی چھا گئی، صرف دیوار پر لگے قومی پرچم کی پرچھائیں ہل رہی تھی، گویا خود وطن گواہ بن چکا تھا ایک سچ کے ظہور کا۔ کراچی کی خاموش رات میں سمندر کی لہریں ایک پراسرار ساز کی مانند شور مچا رہی تھیں۔ نیوی انٹیلیجنس کے دفتر میں علی، روحزاد اور کیپٹن نعمان ایک خفیہ بریفنگ میں مصروف تھے۔ سامنے پروجیکٹر پر وہ تمام جگہیں نمایاں تھیں جہاں کل بھوشن کا نیٹ ورک متحرک رہا تھا، اور ان میں تازہ ترین نشان زد مقام تھا۔ ہب چوکی کے قریب واقع ایک پرانی، بظاہر ترک شدہ گودام۔ روحزاد نے نظریں اس مقام پر گاڑ دیں۔ یہ گودام کب سے زیر نظر ہے؟ کیپٹن نعمان نے جواب دیا، پچھلے 3 ماہ سے۔ اس کے اندر کچھ مشینری کی آوازیں آتی تھیں، مگر کوئی واضح حرکت نہیں۔ کل بھوشن کے پاس سے ملی فائل میں اس مقام کا ذکر خفیہ کوڈ میں تھا۔ علی نے مزید کہا، ہمیں شبہ ہے کہ یہاں چھوٹی سطح کی اصلاح سازی ہوتی رہی ہے۔ اسی وقت ان کے ساتھ موجود ایک انٹیلیجنس افسر نے اطلاع دی، سر، ہمیں فہیم شامی کا لوکیشن پنگ ملا ہے، وہ اسی گودام کے آس پاس کہیں موجود ہے، شاید کوئی خفیہ سرنگ بھی ہو۔ روحزاد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تو پھر وقت آ گیا ہے کارروائی کا، ہم سحر سے پہلے وہاں ہوں گے۔
صبح سے ذرا پہلے جب شہر کی گلیاں ابھی دھند سے بھرے تھے، اسپیشل آپریشنز ٹیم نے گودامہ گھیراؤ کر لیا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف بندوقوں کی ہلکی سی چٹخ اور ریڈیو پر خاموش ہدایات سنائی دے رہی تھی کہ کیپٹن نیامان نے ٹیم کو اشارہ دیا اور دھیرے سے گودامہ کے اندر داخل ہونے کا عمل شروع ہوا۔ اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی اور اندر سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ روحزادہ نے کمر سپاہی وسیم کو اشارہ کیا، دوسری طرف سے گھوم کر پیچھے کے کھڑکی سے داخلہ ہو۔ گودام کے اندر چند افراد اسلحہ کے ڈھیر پر کام کر رہے تھے۔ ایک کمرے کے اندر فہیم شامی موجود تھا، جس کے ہاتھ میں جدید ساخت کی ہینڈ ہیلڈ ریڈیو تھی۔ وہ بھارتی رابطہ مرکز سے لائن پر تھا۔ اندر گھس آئے ہیں میں نکلنے کی کوشش، لیکن اس سے پہلے ہی دروازہ زور سے کھلا۔ علی اندر داخل ہوا اور چند لمحوں میں فہیم زمین پر گرا پڑا تھا، ہوش و حواس کھو چکا۔ کیپٹن نعمان نے باقی افراد کو گرفتار کیا اور پورے گودام کی تلاشی شروع کی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد بریفنگ روم میں انکشافات نے سب کو چونکا دیا۔ سر، ایک افسر نے کہا، یہاں بھارتی ساخت کے پارٹس ملے ہیں، ساتھ ہی ہمیں ایک خفیہ ٹنل ملی ہے جو سرحد کے قریب ایک مکان تک جاتی ہے۔ روزاد نے زخموں سے چور فہیم شامی کی طرف دیکھا، جو اب ہوش میں آ چکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم بچ سکتے ہو؟ تمہارے جیسے لوگ صرف فتنہ پھیلاتے ہیں، مگر اب یہ ملک تم جیسے نمک حراموں کو برداشت نہیں کرے گا۔ فہیم نے زخموں سے کراہتے ہوئے کہا، مجھے صرف پیسے چاہیے تھے، میں قوم پر مرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ علی نے سختی سے کہا، اور تمہیں یہی سزا ملے گی، ایک بے ضمیر غدار کی۔ کیپٹن نعمان نے پرانی فائلوں کی طرف اشارہ کیا۔ سر، ہمیں کل بھوشن کی ایک ڈائری ملی تھی جس میں کچھ کوڈز تھے، ہم نے ان کو ڈی کر لیا ہے۔ اس میں کراچی، گوادر اور مظفر آباد کے لیے مختلف نیٹ ورک کے انچارجوں کے کوڈ نیم درج ہیں۔ روحزاد نے کہا، تو اب ہمیں باقی پیادوں تک بھی پہنچنا ہے۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، علی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور ہمیں ہر غدار کو وہی انجام دینا ہوگا جو کل بھوشن اور فہیم کو ملا ہے۔ کیپٹن نعمان نے پرجوش لہجے میں کہا، ایک ایک کر کے ہم سب کو بے نقاب کریں گے، پاکستان کی زمین پر دشمن کا وجود ناممکن بنائیں گے۔ دفتر کے باہر سورج طلوع ہو رہا تھا اور نئی روشنی کے ساتھ ایک نئے عزم نے جنم لیا تھا۔ صبح کی مدھم روشنی جیسے ہی شہر پر چھانے لگی، نیوی انٹیلیجنس کے دفتر میں ایک نئی ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ روحزاد، علی اور کیپٹن نعمان فہیم شامی سے حاصل ہونے والی معلومات کا جائزہ لے رہے تھے۔ کمرے میں سفید تختے پر 3 بڑے شہروں کے نام نمایاں تھے، کراچی، گوادر، مظفر آباد۔ کیپٹن نعمان نے کہا، یہ تینوں شہر ان نیٹ ورکس کا حصہ تھے جنہیں کل بھوشن نے خود ترتیب دیا تھا۔ گوادر میں ایک نیا رابطہ جسے X74 کے نام سے کوڈ کیا گیا ہے، اب تک سامنے نہیں آیا تھا۔ روحزاد نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، یہ کوڈ نیم ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ اگر ہم X74 کو ڈھونڈ نکالیں تو یہ پورے جال کا مرکزی نقطہ ثابت ہو سکتا ہے۔ علی نے زور دیا، کل بھوشن کی تحریر کردہ ڈائری میں جس باریکی سے تمام مقامات، بندرگاہوں اور رابطوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا پلان صرف دہشت گردی کا نہیں تھا، یہ معیشت کو بھی تباہ کرنے کی منظم کوشش تھی۔ اسی دوران روحزاد کو ایک خفیہ میسج ملا۔ سر، ہمارے ڈرون نے گوادر کے مکران کوسٹ پر ایک مشتبہ قافلہ پکڑا ہے، ان کے پاس سے کچھ ریڈیو فریکوینسی بھی ریکارڈ ہوئی ہیں۔ کیپٹن نعمان نے میز پر ہاتھ مارا، ہمیں فوراً روانہ ہونا ہوگا۔ اگر وہی قافلہ X73 سے جڑا ہوا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑا بریک تھرو ہوگا۔ چند گھنٹوں بعد بلوچستان کی سنسان وادیوں میں ایک خفیہ کارروائی جاری تھی۔ گاڑیاں مٹی اڑاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھیں، علی کی آنکھیں گھنی دھوپ میں بھی مستعدی سے جھانک رہی تھیں۔ دائیں طرف وہ ٹھیلا، ہمیں وہیں سے کچھ سگنلز ملے ہیں، ایک سپاہی نے رپورٹ دی۔ جب ٹیم وہاں پہنچی تو سامنے ایک چھوٹا سا خیمہ دکھائی دیا، اس کے ارد گرد 3 افراد
मुकम्मल खामोशी के साथ जदीद आलात पर काम कर रहे थे। एक नौजवान जिसके हाथ में एक लेजर प्रिंटर जैसा आला था खौफजदा होकर पीछे हटने लगा। अली ने हाथ के इशारे से उसे रोक लिया। हरकत की तो गोली मार दूंगा। तलाशी लेने पर मालूम हुआ कि यहाँ एक छोटा सा प्रिंटिंग सीट अप था जो जाली ईरानी और पाकिस्तानी पासपोर्ट तैयार करता था। खेमे के नीचे एक खफिया तहखाना था जिसमें असलहा, बारूदी मवाद और एक व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक शुदा मोबाइल फोन मिला। कैप्टन नामान ने गुस्से से कहा, यही है उनका फील्ड हेडक्वार्टर। एक और अफसर ने इतला दी, सर हमें एक लैपटॉप मिला है जिसमें X-70 की तफसील दर्ज है। ये दरअसल कलभूषण का दूसरा नाम है जो वो ईरान में इस्तेमाल करता रहा। दफ्तर वापस आकर फहीम शामी से दोबारा तफ्तीश हुई। ये सब कहां से कंट्रोल होता है? अली ने सख्ती से पूछा। फहीम ने नजर झुकाते हुए कहा, ईरान के चाबहार से। वहां कलभूषण के लिए एक बंगला मखसूस था जहां अक्सर रा के अफसर आते थे। मैं खुद 2 बार उनके साथ वहां गया हूं। रोजाद ने सर्द लहजे में कहा, तो वो बंगला तुमने ही खरीदा था? फहीम ने सर हिलाया, जी एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के नाम पर। कैप्टन नामान ने फौरन अपनी टीम को हुक्म दिया, चाबहार में मौजूद हमारे जराये से राबता करो। हमें वो मकाम चाहिए और इसके साथ तमाम सफरी रिकॉर्ड भी। शाम को दफ्तर में सन्नाटा छा गया। अली खिड़की के पास खड़ा समंदर को देख रहा था। रोहजाद पास आया। हम एक एक करके हर सराग पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कितने बाकी हैं। अली ने धैर्य से कहा, पता नहीं, लेकिन जब तक वतन की मिट्टी सलामत है हम नहीं रखेंगे। रात के गहरे सुनाटे में न्यू इंडिया इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में खामोशी छाई हुई थी, मगर अंदर के कमरों में दिमागों का तूफान बरपा था। रोहजाद, अली और कैप्टन नामाना बाइक नहीं सराग पर तो जहमर को किए बैठे थे। चाबहार में मौजूद बंगले की तस्वीर और इसके गिर्द दलवाह के सीट वीडियोस बड़ी स्क्रीन पर चल रहे थे। यह बंगला किसी सफारती इमारत से कमन है लगता। अली ने गौर से तस्वीरें देखते हुए कहा। रोहजाद ने निशानदेही की, यहाँ देखिए, पिछली दीवार के साथ ये जीर जमीन रास्ता, शायद यही खफिया रास्ता कलभूषण के राबतों का बुनियादी जरिया रहा हो। इसी लम्हे एक और अफसर लेफ्टिनेंट अबीद कमरे में दाखिल हुआ। सर, हमारे मुखबर ने इतला दी है कि चाबहार में वही बंगला हाल ही में खाली किया गया है, मगर एक मकामी शख्स ने बताया है कि इसमें अक्सर वही लोग आते जाते थे जिन्हें ईरान में रागिरा के साथ कैप्टन नामान ने कहा, ये वक्त जाया करने का नहीं। अबीद, अपने राबतों के जरिए इस मकाम पर मौजूद तमाम रिकॉर्ड हासिल करो, चाहे वो CCTV फुटेज हो या बिजली के बिल। हमें हर मुमकिन चीज दरकार है। दूसरी तरफ कराची में खफिया मॉनिटरिंग सेल के जरिए एक और बड़ा सराग मिला था। एक कॉल जिसमें कुछ अफराद उर्दू और फारसी के बीच बात कर रहे थे। आवाजों में एक मानूस अंदाज था। कलभूषण ईरान से गवादर गया, वहां एक शख्स से मिला। वो शख्स पाकिस्तानी फौज का साबिक अफसर था। उसे बीरा ने खरीदा है। नाम क्या था? कुछ दस्तावेजात में SA खान दर्ज है। अली ने तेजी से कहा, यही वो लिंक है जो हमें अभी तक नहीं मिला था। हम अंदरूनी गदारों की बात करते रहे, मगर ये बराह रास्त कलभूषण के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अगले दिन अली और रोहजाद ने इस्लाम आबाद का रुख किया। वहाँ एक सीनियर सिविलियन एहलकार से मुलाकात तय थी जो माजी में वजारत खारजा के खफिया मंसूबों का हिस्सा रहा था। दफ्तर में दाखिल होते ही एक दुबला पतला सा बूढ़ा शख्स जिसके बाल सफेद थे बोला, मुझे कलभूषण का पहला मैसेज 2002 में मिला था जब वो ईरानी पासपोर्ट पर बिजनेसमैन बनकर पाकिस्तान आना चाहता था। हमने इस वक्त सिर्फ नजर की क्योंकि हमारे पास ठोस शवाहिद नहीं थे। रोहजाद ने बड़ा सा मना बनाकर कहा,
और इसी नजरअंदाज का नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद जब वो बलूचिस्तान में नजर आया तो हमने खामोशी से निगरानी शुरू की, मगर वो हमेशा 2 कदम आगे रहा। अली ने कहा, अब वो 2 कदम हम आगे होंगे। इसी दौरान एक नई शख्सियत सामने आई, एक नौजवान अफसर जिसका नाम था कैप्टन साद। वो ग्वादर के मकामी इलाकों में काम कर रहा था और कलभूषण के नेटवर्क को जमीन से समझ रहा था। कैप्टन साद ने कहा, सर, एक जगह है बारूद चौराहा, वहां अक्सर वही गाड़ियां आती हैं जो जाली नंबरों से रजिस्टर होती हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इन्हीं गाड़ियों में असलहा और नकदी स्मगल होती है। रोहजाद ने फौरन कहा, तुम्हें मुकम्मल इख्तियारात दिए जाते हैं, अगर मुमकिन हो तो वो गाड़ियां कल रात ही पकड़ लो। कैप्टन साद ने फख्र से जवाब दिया, सर, मैंने इसी दिन के लिए वर्दी पहनी थी। रात गए, बारूद चौराहे पर कार्रवाई हुई। 3 गाड़ियों को रोका गया। एक गाड़ी से निकलने वाला शख्स हाथ बुलंद किए बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ ड्राइवर हूं। मगर उसकी जीप से एक कागज निकला, एक नक्शा जिसमें बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर 3 मखसूस निशानात लगे थे। कैप्टन साद ने सरगोशी में कहा, ये तो अगली मंजिलें हैं, शायद वहीं से कलभूषण की रायदारी मुकम्मल होती है। नेवी इंटेलिजेंस का माहौल बदला हुआ था। एक नया इज्म, एक नई हुआ। अली ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम न सिर्फ दुश्मन को रोकें बल्कि दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान अपने दुश्मनों को पहचानता भी है और रोकना भी जानता है। रावलपिंडी में नेवी इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर की मीटिंग रूम में हाई अलर्ट माहौल था। दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन पर बलूचिस्तान के साहली इलाके के ताज़ा तरीन सेटेलाइट इमेजेस चल रहे थे। कैप्टन ननामान, रोहजाद, अली और कैप्टन सादा एक मीज के गिर्द बैठे अगले बड़े इकदाम की मंसूब बंदी कर रहे थे। कैप्टन साद ने अपनी रिपोर्ट पेश की। बारूद चौराहे से पकड़ी गई गाड़ियों में से एक गाड़ी के फ्रंट सीट के नीचे से छुपाया हुआ GPS ट्रैकर मिला है। इसमें हालिया सफर तमाम तफसील महफूज थी। अली ने झक कर लैपटॉप पर डेटा खोला। ये देखें, ये गाड़ी चाबहार से आई, फिर ग्वादर और वहां से तरबत के करीब एक फार्म हाउस पर रखी। रोहजाद ने संजीदगी से कहा, तरबत के उस इलाके में इराक एक स्लीपर सील सरगर्म हो सकता है। ये कलभूषण का 20 कैंप लगता है। इसी शाम तरबत के नवाह में फार्म हाउस के करीब एक खफिया ऑपरेशन शुरू हुआ। कैप्टन साद और इसकी टीम ने खामोशी से मकाम का घेराव किया। दूरबीन से नजर आई एक चमकती हुई गाड़ी और 2 अफराद जो बाकायदा गार्ड्स जैसे लग रहे थे। साद ने वायरलेस पर सरगोशी की, याद रखो, हमें सबूत भी चाहिए और गिरफ्तारियां भी। वहीं और गिरफ्तारियां भी। जो नहीं सिग्नल मिला, अहलकारों ने फार्म हाउस पर धावा बोला। अंदर से 2 लैपटॉप, कई ईरानी पासपोर्ट्स और खफिया नोटिस बरामद हुए। एक कमरे की दीवार के पीछे छुपाया गया सैफ मिला, कींचस मिला, जिसमें एक छोटा डायरी थी, उसी अंदाज में लिखी हुई जैसा एक बार अली को कराची के नेवी बेस में मिली थी। अली ने पढ़ते हुए कहा, यह डायरी बराह रास्त कलभूषण की हैंड राइटिंग लगती है। अगर यह साबित हो गया तो यह सबसे मजबूत सबूत होगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में वजारत खारजा के अंदर हलचल थी। सीनियर अहलकारों का इजलास जारी था। उन्होंने फैसला किया कि बिना लाकवामी सतह पर इस मामले को दोबारा हटाया जाएगा। पाकिस्तान के पास साबिका सबूत मौजूद थे कि कलभूषण ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ, रॉकेट नेटवर्क को मंजम करता रहा और बलोच गैपसंदों को तरबीत वसाइल फराहम करता रहा। दफ्तर के एक जानबी रहबीठान अंजवान तज्जियाकार बोला, सर, हमारे पास वीडियोस, नक्शे और तहरीरी सबूत सब कुछ है। अब आलमी अदालत को मजबूर किया जा सकता है कि वो भारत पर दबाव डाले। कराची में एक और पेशरफत हुई। वहां अली और रोहजाद ने एक साबिक नेवी अफसर से मुलाकात की जिसने कई साल बलूचिस्तान में ड्यूटी दी थी। उसने एक चौंका देने वाला इंकिशाफ किया। कलभूषण न सिर्फ ईरान से आता जाता रहा बल्कि उसने कराची के मुजाफात में एक खफिया पनाहगाह भी बनाई थी।
उस जगह को संघार बंगला कहा जाता था, जहां रा के एजेंट्स एक वक्त में ठहरते थे। अली ने फौरन ऑर्डर दिया, उस बंगले पर आज रात छापा मारा जाएगा। इसी रात कराची के दहाई के नवाही इलाके में एक खफिया छापा मारा गया। वहां से एक ऐसा आला मिला जो भारत से बराह रास्त कंट्रोल होता था, एक जदीद सैटेलाइट डिवाइस जो खफिया पैगामात वसूल कर सकता था। सूर्य का हाइपोथेटिकली साथ ही एक फहरिस्त भी बरामद हुई जिस पर कई पाकिस्तानी शहरियों के नाम दर्ज थे। कुछ अगवा किए गए थे, कुछ कम नाम थे और कुछ हुकूमत मुखालिफ बयानात दे चुके थे। रुज़ाद ने संजीदगी से कहा, यह सिर्फ एक जासूस का केस नहीं रहा, यह कौमी सलामती का मसला बन चुका है। रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में अली और कैप्टन नयमान ने एक नई फाइल पर काम शुरू किया। इस फाइल का कोड नाम था ऑपरेशन फाइनल नेट। इसका मकसद था कुलभूषण के पूरे नेटवर्क को बेनकाब करना, बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत के चेहरे को बेनकाब करना और पाकिस्तान के नौजवानों को दिखाना कि दुश्मन किस तरह बज़ाहिर खामोश रहकर मुल्क के अंदर बिगाड़ पैदा करता है। अली ने मुस्कुराकर कहा, यह वक्त है कि हम ये साबित करें, पाकिस्तान दुश्मनों का शिकार नहीं, दुश्मनों का कब्रिस्तान है। रावलपिंडी के खफिया दफ्तर की दीवारों पर खामोशी तारी थी, लेकिन अंदर एक नई तहरीक की आहट सुनाई दे रही थी। कुलभूषण यादव के एतराफी बयान ने मुल्क के खफिया हदारों को एक नए मिशन पर लगा दिया था। मीटिंग रूम में बैठे आला अफसरान ने खामोशी से वह वीडियो क्लिप दोबारा दिखा जिसमें कुलभूषण सिर्फ अपने शनाख्त बल्कि ईरान से पाकिस्तान दाखिल होने और बलूचिस्तान में नेटवर्क बनाने का एतराफ कर रहा था। कैप्टन अली ने फाइल बंद किया और कहा, यह एक मामूली गिरफ्तारी नहीं है, ये रॉ के चेहरे से नकाबात हटा देने वाली बात है, हमें इसका फायदा उठाना होगा। कर्नल शहबाज ने सर हिलाया। ज़रबे अज़ब के बाद मुल्क में बड़ी हद तक अमन आया है, मगर ये एतराफ इस बात का सबूत है कि दुश्मन अब भी हमारे अंदर मौजूद खला का फायदा उठा रहा है। एसपी अमीर ने एक नक्शा मेज पर फैला दिया। ये वो रास्ते हैं जहां से कुलभूषण ने नक्लो हरकत की। चाबहार ईरान का वो मकाम है जहां से ये सफर शुरू हुआ, वहां इसे बिजनेस कोड दिया गया। फिर जाली ईरानी पासपोर्ट के जरिए वो कई बार सरहद अबूर करता रहा। कराची, गवादर, थरबत और कोयटा, ये सब इसकी सरगर्मियों के मरकज थे। कर्नल शहबाज ने संजीदगी से कहा, हमें इन तमाम जगहों पर छापे मारने होंगे। जो भी शख्स या तंजीम इस नेटवर्क में शामिल है, इसे बेनकाब करना होगा। कैप्टन अली ने लैपटॉप खोला और वीडियो दोबारा चलाई। कुलभूषण साफ उर्दू में एतराफ कर रहा था, मेरा नाम कुलभूषण यादव है, मैं इंडियन नेवी का हाजिर सरोस ऑफिसर हूं और रॉ के लिए काम कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान में तखरीबकारी, बदामनी फैलाने और बलूच अलीहदगी पसंदों को माली अमदाद देने के लिए आया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो क्लिप में IISPR के तर्जुमान ने दुनिया को बताया था कि यह शख्साई की रियासत दहशतगर्दी का सबूत है। आलमी मीडिया में शोर मच गया था। कुछ ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना, कुछ ने आंखें बंद रखें, मगर भारत के झूठ का पर दहचाक हो चुका था। रात के पिछले पहर कैप्टन अलिया और कर्नल शहबाज ने मुश्तरके छापे की हिकमत अमली तरतीब दी। प्लानिया था, कहा गले 48 घंटों में कराचिया और गवादर के नेटवर्क को तोड़ा जाए। एसपी अमीर ने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। दूसरी तरफ एक खामोश कमरे में रूहजाद फाइलों के अनबार के बीच बैठा था। वह फौजी ने था, मगर अस्कात जजी दुश्मन के जहन को पढ़ने जैसा था। इसने मेज पर बिखरी रिपोर्टों में एक बात पकड़ ली, कुलभूषण की सरगर्मियां उस वक्त बढ़े जब कराची में बम धमाके हुए थे। इसने रेड मार्कर से इस वक्त का ग्राफ सर्च कर दिया। यहीं से खेल शुरू हुआ। वह बड़बड़ाया। सुबह होते ही कर्नल शहबाज ने 2 छाप हमारी टीमों को गवादरा और कराची भेजा। कराची में लियारी का एकम खसूस इलाका हदफ था, जहां से कई बार कुलभूषण ने समंदरी नकलो हरकत की निगरानी की थी। गवादर में एक पर अनीद खान के तह खाने से नक्शे, सैटेलाइट फोन्स और ईरान के फोन नंबर्स बरामद हुए।
तमाम शवाहद को इकट्ठा करके फौरन रावलपिंडी भेजा गया। कराची में छापे के दौरान एक मशकूक शख्स जनीद बलोच को गिरफ्तार किया गया। इसके फ़ोन से वो पैगामात बरामद हुए जो कुलभूषण की सरगर्मियों से बराह रास्त जुड़े थे। जनीद के जरिए पता चला कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई बेनामा अकाउंट्स से फंडिंग होती रही है। रावलपिंडी में कर्नल शहबाज ने इन शवाहद को जोड़ना शुरू किया। कुलभूषण तन्हा नहीं था, एक पूरा नेटवर्क था और हर अकाउंट, हर कॉल, हर ऑडियो अब हमारे पास है। इधर रोहजाद ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर नोट बनाया, कुलभूषण का ईरान से आना कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक मुकम्मल मंसूबा था जो चाबहार पोर्ट से जुड़ा हुआ है। भारत ने इस पोर्ट का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी और तखरीबकारी के लिए किया। अब कैप्टन अली ने एक नई फाइल खोली, ऑपरेशन फाइनल नेट। इस फाइल में कुलभूषण के नेटवर्क से जुड़े बाकी किरदारों को गिरफ्तार करने का मुकम्मल प्लान मौजूद था। अगला हदफ बलूचिस्तान के अंदर मौजूद सहूलतकारों को निकालना है, कैप्टन ने फैसला सुनाया। कर्नल शहबाज ने एक गहरी सांस ली। ये जंग हथियारों की नहीं, जहनों की है। हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। एसपी अमीर ने छोटा सा जुमला कहा, कुलभूषण की गिरफ्तारी सिर्फ एक फतह नहीं, ये दुश्मन के खफिया हथियार का जवाल है। कहानी अब नया रुख ले रही थी। ज़रबे अज़ब के बाद ये नई इंटेलिजेंस जंग थी, एक जंग जो मीडिया में नहीं, खफिया कमरों में लड़ी जा रही थी। और हर सतर, हर फाइल, हर एतराफ एक नए ऑपरेशन की बुनियाद रख रहा था। कमरे में गहरी खामोशी थी। दीवार पर नस्ब एलईडी स्क्रीन पर एक खाके बार बार दिखाया जा रहा था। ये खाके था कुलभूषण यादव का, जवाब पाकिस्तान की सिक्योरिटी अदारों की हिरासत में था। कर्नल शहबाज ने हाथ में फाइल बंद की और निगाह हटाकर मारहबाली की तरफ देखा। ये तुम्हारा सबसे बड़ा कीच है, मारहबा, मगर अब्बास से जॉस्टिन कलवाना है, वह पूरे खते के सियास तब्दील सकता है। मारहबा ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, कर्नल साहब, वो अब टूटने के करीब है। जो मालूमात हमें मिली हैं उनसे भारत के कई मंसूबे बेनकाब होंगे। साथ खड़ा रोजाद, जो अब मुकम्मल तौर पर सिस्टम का हिस्सा बन चुका था, खामोशी से सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर एतमाद था मगर आंखों में चिंगारी। सर, उसने ईरानी पासपोर्ट इस्तेमाल किया, चाबहार से कराची, फिर बलूचिस्तान, सब कुछ नक्शे पर मौजूद है। कर्नल शहबाज ने टेबल पर रखा बटन दबाया और फौरन कमरे में एक और ऑफिसर दाखिल हुआ। कैप्टन बलाल, ब्रीफिंग तैयार है? शहबाज ने पूछा। कैप्टन बलाल ने सर हिलाया। जी सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मवाद मरतब कर लिया गया है। कुलभूषण ने जिस तरह नेटवर्क बनाया, जिन लोगों से मिला, किस जगह गया, नेटवर्क, सब कुछ हमारे पास है। मारहबा अली ने एक पर्ची उठाकर कैप्टन बलाल को थमाई। इस नाम पर तहकीक करो, ये भी उसके नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। बाहर कराची के एक हिसास इलाके में एसपी अमीर ने छापा मारा। वहां छुपी एक छोटी सी वर्कशॉप से कुछ मुश्तबा आलात बरामद हुए, खास तौर पर एक हैंड सीट जिस पर भारतीय सम थी। ये रॉ का जीली मरकज लगता है, अमीर ने बड़बड़ाते हुए कहा। कुलभूषण की गिरफ्तारी ने उनकी नींदें उड़ा दी हैं। दूसरी तरफ बंद कमरों में कई एजेंसीज एक दूसरे के साथ ताउन में मसरूफ थीं। मुल्क की सिक्योरिटी इदारों ने मिलकर फैसला किया कि कुलभूषण के बयान को आलमी सतह पर उजागर किया जाए। एक वाज़ेह पैगाम देना था, पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात टीवी स्क्रीन पर लाइव फुटेज चल रही थी। एक सादा मेज, दो पाकिस्तानी ऑफिसर और दरमियान में कुलभूषण, जो झके हुए लहजे में अपने जराइम का एतराफ कर रहा था। मेरा नाम कुलभूषण यादव है, मैं इंडियन नेवी का ऑफिसर हूं और मैं रॉ के लिए काम करता रहा हूं। दुनिया दम साध कर सुन रही थी। वाशिंगटन, दिल्ली, तेहरान, काबुल, बीजिंग, हर सफारती दफ्तर में सन्नाटा था। पाकिस्तानी अदारे अब कागजात के साथ, सबूतों के साथ बात कर रहे थे। यहाँ सिर्फ दावे नहीं थे बल्कि कार्रवाई थी।
ज़ुल्फ़ खानी के आगाज से मारबा का पुराना ताल्लुकदार रहा, अब पस मंजर से नमोदार हुआ। मारबा, याद है बचपन में हम कहते थे कि कभी ऐसा दिन आएगा जब हम दुश्मन के दिल तक पहुंचेंगे। वह दिन आज। मारबा मुस्कुराया, हाँ, मगर अब तुम्हें फ्रंट पर आना होगा, तुम्हारा किरदार अभी खत्म नहीं हुआ। मज़ाहिया किरदारों का आखिरी राउंड। बाबा ठिस ने इस दिन का इंतजार बरसों से किया था। जैसे ही मीडिया पर शोर मचा, वो अपने गांव में सबको जमा करके मालूम ज़राए से इसे सच्चाई सुनाने लगा। मैंने पहले ही कहा था ये बंदा ईरानी है मगर अंदर से हिंदू है। सब लोग हिंसने लगे, मगर ये हिंसी खौफ और हकीकत के संगम पर थी। पांडत चोपड़ा, जिससे रॉ एजेंट्स राब्ता करने आए थे, अब मुकम्मल तौर पर लापता था। इसकी दुकान बंद थी और एक अफवाह गर्दिश में थी। वो वापस भारत फरार हो गया। रात के आखिरी पहर मारबा अली छत पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। अब हमारी जंग सच्चाई के साथ है। दुश्मन को शिकस्त सिर्फ बंदूक से नहीं, सच से होती है। मारहबा अली ने फोन बंद किया तो लम्हे के लिए छत पर खामोश खड़ा रहा। हवा में खफीफ सी नमी थी, जैसे आने वाले वक्त की पेश की खबर हो। मरहला 2 का मतलब था कि खेल का अगला राउंड शुरू हो चुका है और अब ये सिर्फ कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी तक महदूद नहीं रहेगा। अगली सुबह मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक खफिया दफ्तर में अहम अफसरान जमा थे। कर्नल शहबाज ने एक ताज़ा रिपोर्ट सामने रखी। भारत ने नई मीडिया मुहिम शुरू की है। वो कुलभूषण को अपना शहरी मानने से इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं वो रिटायर्ड अफसर है, ईरान में बिजनेस कर रहा था और पाकिस्तान ने अगवा किया। रोहजाद ने संजीदा लहजे में कहा, मगर हमारे पास इसका एतराफ़ी बयान है, वीडियो सबूत हैं, इसकी ईरानी पासपोर्ट नकल व हरकत की पूरी तारीख है। ये सब झुठला नहीं सकते। कर्नल शहबाज ने टेबल पर इंगली मारते हुए कहा, और इसीलिए हमें अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जाना होगा। आलमी सफारतकारी अब हमारे हाथ में है। इसी लम्हे एक नौजवान ऑफिसर दाखिल हुआ। कैप्टन फहद। सर, हमें चमन बॉर्डर पर एक मशकूक नकल हरकत की इतला मिली है। ऐसा लगता है कि कुलभूषण के नेटवर्क से जुड़ा कोई और बंदा ईरान से वापस पाकिस्तान आ रहा है। मारहबा ने फौरन कहा, फहद, टीम तैयार रखो, हम इसे जिंदा चाहते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में रॉ के एक खफिया बंकर में आला सतही इजलास जारी था। कुलभूषण की गिरफ्तारी हमारे लिए शर्मिंदगी है। हमें हर हाल में इसे वापस लाना होगा या फिर इसका नेटवर्क मुकम्मल खत्म करना होगा, मुबल्लग करना होगा ताकि वो बोल ना सके। इसी वक्त एक सफेद दाढ़ी वाला शख्स बोला, एक आदमी बाकी है जो खामोशी से कुलभूषण के निशानात के लिए है। नाम है राजेश कनवर। पाकिस्तान में रूहजाद और मारहबा को इतला मिली कि बलूचिस्तान के एक इलाके में मशकूक सरगर्मी हो रही है। दोनों फौरन वहां पहुंचे। रात का वक्त, खामोश पहाड़ियां और दरमियान में एक खस्ता हाल मकान। टीम ने चारों तरफ से घेरा डाल लिया। मारहबा ने वायरलिस पर कहा, कोई फायरिंग नहीं, हमें जिंदा चाहिए। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर एक शख्स हांफता कांपता मिला। वो कोई और नहीं बल्कि राजेश कनवर था। इसके पास जाली शिनाख्त, GPS और एक खास मोबाइल डिवाइस थी जिसमें कुलभूषण के नेटवर्क से जड़े तमाम राबतों की फहरिस्त मौजूद थी। तो तुम वो हो जिसे खामोशी से सब मिटाने भेजा गया, रोहजाद ने कहा। राजेश की आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ गरूर। तुम लोग जितना मर्जी शोर मचाओ, दुनिया तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। हम हैं आलमी ताकत, तुम सिर्फ शोर हो। मारहबा ने जवाब दिया, लेकिन अब तुम खामोश रहोगे एक लंबे वक्त के लिए। इसी रात इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मारहबा, रूजाद, कर्नल शहबाज और कैप्टन फहद मीडिया के सामने थे। ये है राजेश कनवर, रॉ का एजेंट जो कुलभूषण यादव के बाद बाकी नेटवर्क खत्म करने आया था। लेकिन हम खामोश नहीं बैठे, हमने इसे पकड़ लिया, सबूतों समेत। कमरा तालियों से गूंज उठा। इधर दिल्ली में रॉ के अंदर हंगामा था। हमें अपना तरीका बदलना होगा,
पाकिस्तान अब सिर्फ सरहदों पर जंग नहीं लड़ रहा, वो सच्चाई से लड़ रहा है। एपिसोड का अख्ताम मारहबा अली फाइल बंद करते हुए बोला, ये जंग सिर्फ बंदूकों की नहीं, बयानिए की है, और हम अब बयानियां जीत रहे हैं। अगर आप कहें तो एपिसोड 60 लिखकर पे एपिसोड शहर के फिजा में गैर मामूली खामोशी थी, जैसे जमीन खुद सांसर होकर किसी बड़े इंकिशाफ का इंतजार कर रही हो। इस्लामाबाद के खफिया मुकाम पर कौमी सलामती की आला सतही भी ठग जारी थी। कमरे के बीच एक बड़ी स्क्रीन पर कल्ब होशनिया दीवार राजेश किन्वर के एतराफ़ी बयानात चल रहे थे। मारहबा अली, रोहजाद, कर्नल शहबाज और कैप्टन फहद मुकम्मल खामोशी से वीडियो के आखिरी मनाजिर तक देखते रहे। कर्नल शहबाज ने फाइल बंद की। अबू कत आ गया है कि हम बीन अल अक़वामी सतह पर फैसला कन कदम उठाएं। रोहजाद ने संजीदा लहजे में कहा, हमें अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल डोजियर जमा कराना होगा, वो तमाम सबूत जो न सिर्फ भारत के किरदार को बेनकाब करें बल्कि दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई प्रॉक्सी वार के पीछे कौन है। मारहबा ने सर हिलाया, और ये कदम आखिरी नहीं बल्कि एक नए बाब की शुरुआत है। इधर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का अजलास जारी था। पाकिस्तानी वफ्द ने कलभूषण यादियों की गिरफ्तारी, इसके ईरानी पासपोर्ट, राजेश कन्वर की सरगर्मियां और इंटेलिजेंस नेटवर्क के मुकम्मल सबूत पेश किए। पाकिस्तानी नुमाइंदे ने कहा, यह दहशतगर्दी सिर्फ बारूद से नहीं, जहनों को गुलाम बनाने के लिए की जाती है, और हमने ये जंग मैदान में नहीं, सच के साथ जीती है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद कमरे में हलचल मच गई। बेशतर मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को संजीदगी से लिया। दूसरी तरफ दिल्ली में रॉ का हेडक्वार्टर बड़े अहदेदारों की मीटिंग थी। हमें अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान इतना मंजम जवाब देगा। राजेश का पकड़ा जाना हमारे पूरे लिए खतरा है। हमें ना सोच कर चलनी होगी, बहुत सोच समझ कर चलनी होगी। मगर एक सीनियर अफसर ने कहा, अब जंग टेक्नोलॉजी से नहीं, सच्चाई से हारी जा रही है, और यही हमारी कमजोरी बन रही है। पाकिस्तान में लाहौर के एक स्कूल में मारहबा अली बच्चों को सच, कुर्बानी और हब्बल वतनी के कसे सुना रहा था। इसकी आंखों में इज़्म, चेहरे पर सुकून और आवाज में वो गूंज थी जो नस्लों को जगा दे। हमने जंग नहीं चाही, लेकिन सच को खामोश नहीं होने दिया। हमने सिर्फ अपने मुल्क के लिए ये नहीं, अमन के लिए लड़ा। रोहजाद अब सरकारी एजेंसी में बतौर तज्जियाकार खिदमात सरअंजाम दे रहा था। वो खामोशी से अपनी मेज पर बैठा आने वाले वक्तों के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहा था। कैप्टन एंड फैद अब बलूचिस्तान की बॉर्डर पर नए मिशन पर तैनात था। वो जानता था कि जंगे खत्म नहीं होते हैं, सिर्फ इनका मैदान बदलता है। कर्नल शहबाज ने एक ताज़ा रिपोर्ट देखी। उस पर एक लफ्ज़ लिखा था, अमली सुकून, नजरियाती कामयाबी। और फिर आखिर में किसी टीवी चैनल पर खबर चल रही थी, पाकिस्तान ने एक और खफिया भारतीय एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा जा रहा है। कहानी ख़त्म नहीं हुई, मगर एक बाब मुकम्मल हो चुका था।